Hello dear students. Today topic is liberalization, उदारीकरण. Liberalization means elimination of state control over economic activity. It implies greater autonomy to the business enterprises in discuss making and removal of government interface. It was believed that the market force of demand and supply would automatically operate to bring about greater efficiency and the economic would recover. This was to be done internally by introducing reforms in the real and financial sector of the economy and internally by relaxing state control on foreign investment and trade. उदारीकरण का अर्थ है अ, आर्थिक गतिविधियों पर राज्य नियंत्रण का उन्मूलन। इसके द्वारा निर्णय लेने और सरकारी हस्तक्षेप को हटाने में व्यावसायिक उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी जानी है। यह माना जाता था कि मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार स्वचालित रूप से एवं अधिक दक्षता लाने के लिए काम करेंगे और अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों एवं बाहरी निवेश को एवं व्यापार पर राज्य के नियंत्रण को कम करके आंतरिक रूप से किया जाएगा। The major aspects of liberalization भारत में उदारीकरण के प्रमुख पहलू abolition of licensing NIP 1991 abolished licensing for most industries except 6 industries of strategic significance. They include alcohol, cigarette, industrial explosive, defense products, drugs, pharmaceutics, chemicals, and certain others reserved for the public sector. This would increase setting up of new industries and shift focus to productive activities. लाइसेंस की समाप्ति 1900 NIP 1991 ने रणनीति महत्व के 6 उद्योगों को छोड़कर अधिकांश को लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। इसमें शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोट, रक्षा उत्पाद, ड्रग्स, रसायन और कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया। यह नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा और नई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। Liberalization of foreign investment. While earlier prior approvals was required by foreign companies, now automatic approval were given foreign direct investment to flow into the country. A list of high priority and investment incentives industries was delicensed and could invest up to 100% FDI including sector such as hotels and tourism, infrastructure, software development, use of foreign policy या foreign brand name or trade mark was permitted for sale of good. विदेशी निवेश का प्रत्यक्षीकरण पहले जहां विदेशी कंपनियों द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, वहीं अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देश में प्रभावित करने के लिए स्वचालित स्वीकृति दे दी गई थी। उच्च प्राथमिक और निवेश गहन उद्योगों की एक सूची को चित्रित किया गया
जिसमें होटल और पर्यटन, बुनियादी ढांचा, सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्र शामिल किए गए। माल की बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नाम और व्यापार चिन्ह का उपयोग कर सकती थी, इस प्रकार की उन्हें अनुमति प्रदान की गई। रिलैक्सेशन ऑफ locational restrictions. There was no requirement anymore of obtaining approval from the central government for setting up industries anywhere in the country, except those specified under compulsory license or in cities with population exceeding population 1 million. Polluting industries were required to be located 25 kilometers away from the city preference if the city population was greater than 1 million. स्थानीय प्रतिबंधों का विलोपन या स्थानीय प्रतिबंधों को कम करना। अनिवार्य लाइसेंस के तहत 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को छोड़कर देश के में कहीं भी उद्योग स्थापित किए जा सकते थे। इसके लिए केंद्र सरकार से किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। यदि शहर की आबादी 1 मिलियन से अधिक है तो प्रदूषण उद्योगों को शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही अपना उद्योग स्थापित कर सकते थे। लिबरलाइजेशन ऑफ foreign technology imports. In project where import capital goods are required, automatic license would be given for foreign technology import up $2 million. No permission would be required for hiring foreign technology and foreign testing in indigenous development technologies. विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात का मानकीकरण। जिन परियोजनाओं में आयातित पूंजी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी प्रौद्योगिकी आयात के लिए स्वचालित लाइसेंस दे दिया जाएगा। विदेशी तकनीकों को काम पर रखने तथा स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के विदेशी प्रशिक्षण की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जहां हम 2 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे या बाहर से उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अगर उससे कम अगर हम करते हैं तो किसी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। या जहां पर स्वदेशी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा तो उसमें भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, सार्वजनिक सेक्टर रिफॉर्म्स। Greater autonomy was given to the public sector units through the Memorandum of Understanding, restricting interface of the government official and allow the management greater freedom in decision making. सार्वजनिक उपक्रमों या इकाइयों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने और निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। भारत में उदारीकरण का प्रभाव। फ्री फ्रॉम द कैपिटल। Liberalization has enhanced the flow of capital by making it affordable for business to reach the capital from investors and take a profitable projects. पूंजी का मुक्त प्रवाह।
उदारीकरण ने पूंजी के प्रवाह को बढ़ाकर व्यवसायों के लिए निवेशकों से पूंजी तक पहुंचना और एक लाभदायक परियोजना लेना सस्ता कर दिया है। Diversity for investors. The investors will be benefited by investing a portion of the business into a diversifying asset class. निवेशकों के लिए विविधता। निवेशक अपने व्यवसाय के एक हिस्से को विविध परिसंपत्ति वर्ग में निवेश करके लाभान्वित हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक या कोई एक कंपनी एक से अधिक बिजनेस में अपना पैसा लगा सकता था। Impact on agriculture. In this area, the cropping design have experienced a huge change, but the impact of liberalization cannot be accurately measured. Government's restrictions and interventions can be seen from product to distribution of the crop. कृषि के क्षेत्र में फसल के डिजाइन में भारी बदलाव अनुभव किया गया, लेकिन उदारीकरण के प्रभाव को सही ढंग से नहीं नापा जा सकता। उत्पादन से लेकर फसल के वितरण तक सरकारी प्रतिबंध और हस्तक्षेप को देखा जा सकता है। The weakening of the economy, amorous restoration of political power and economic power will lead to weakening the entire Indian economy. अर्थव्यवस्था का कमजोर हो जाना, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति की लगातार बहाली से पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। टेक्निकल या technological impacts. Fast development in technology allows many small-scale industries and other businesses in India to either adjust to change or suit their businesses. प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास भारत के कई छोटे उद्योगों एवं अन्य व्यवसायों को या तो परिवर्तन में समायोजित करने या उन्हें व्यवसायों को बंद करने की अनुमति देता है या उनको पूर्ण रूप से बंद करने की ओर ले गया। Merger small businesses. Here small businesses are merging with big companies. Therefore, the small companies' employees may need to enhance their skills and technologically advanced. The enhance of skills and the time it might take may lead to non-productive and can be a burden to the company's capitals. विलय या अधिग्रहण। यहाँ छोटे व्यवसायों का बड़ी कंपनी के साथ विलय होने लगा, इसलिए छोटी कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी कुशलता और तकनीकी को उन्नत करने की आवश्यकता हो गई। यह कौशल बढ़ाने और समय लगने से गैर उत्पादकता बढ़ी और कंपनी की पूंजी के लिए बोझ बन गई। थैंक यू।